everyone can hear me and see me also? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great, great. Yes, sir. So, of course, you won't have to see me a lot. I'll be sharing a presentation with you. I think without wasting more time, I'll start off with the presentation. Um I'll just share my screen. Yeah, is everyone able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, cool, cool. Welcome everyone, and I would like to thank PP Savani for giving me a chance to do this webinar. I was told that the people who are going to attend this are a mix of the current students studying as well as some aspirants, and then probably people from non-design backgrounds, even maybe faculty, colleagues are also there. So the topic, as you can see, is problem solving by making connections, a designer's approach. So before we start, I just want to say that problem solving is something that all of us, encounter in our daily lives. Either it would be at a personal level or a professional level, and there is no perfect approach towards solving a certain problem. But there is something good about every approach that people develop with a period of time. And one of those approaches is what is followed by a designer. This is what we are taught in design school, and this is what we practice once we go into the industry. So I thought that I would talk about how what are the positive attributes of an approach that a designer takes, and also the fact that this is something that anybody can use. It is easy to understand, but requires a lot of practice to become good at. So yeah, so I'll start the presentation, and if anyone has any issues with any audio or something, just speak up so that I'll stop, and if anything needs to be done, we'll do it at that point. So if everything is good, Sure. I'll start. Okay, cool. So problem solving. Now, like when we talk about problem solving, um, the three common things that are associated with any problem is, first of all, the problem, then the solution, and then there is an approach. Now, now problems are of various types. I mean, that is why we have so many people who specialize in different kinds of skills. Like you have engineers, you have doctors, you have lawyers, you have within design itself, you have product designers, you have game designers, you have lifestyle designers, you have apparel designers. So because the world is filled with many kinds of opportunities and many kinds of scenarios which require specific type of skill set. So that is why you have many types of problems occurring in different fields. And for every problem and for every type of problem, there are different types of solutions also, which is something that by now you also would have experienced. And an interesting thing is that sometimes for the one same problem, you have multiple types of solutions, but some solutions are good and some solutions are bad. So even if you look back at your time in school, and for those who are attending this, who are studying in school and preparing for their design colleges, so even if you take up a problem in maths or science, even though the answer to it would be one specific answer, but there are different ways of coming to that answer. And based on that, you guys decide कि हाँ यार ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है या ये बहुत लंबा तरीका है. So ultimately, even if the solution is the same, is the what we have to reach towards is the same, the approach matters a lot. So that is why approach is a very critical part about problem solving. Now, let us take three examples. Okay, so these are not your day-to-day life problems that you come across. So I have written on the presentation. Let's say that the first problem is that we have to train kids to improve their strategic thinking. I think all the parents would like their children to be good at planning. Even the kids would prefer to be able to make decisions properly. So then that is something a child would require training in, for which they go to schools. Another problem could be that people always say कि यार हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल तक ही रह जाता है. Either we are preparing for the exams or for the class, but in real life you don't necessarily apply everything that you learn in school, which is a sad thing because आप स्कूल में इतना टाइम स्पेंड करते हो तो रियल लाइफ के लिए तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को.
let's take a third type of problem which is very different. Like कोई cartoon show है उसके लिए action figure. Okay, so these are three very different and varied types of problems. So now imagine कि एक room में we have kept people of different domains. We have an engineer, we have a lawyer, we have an architect, we have an artist, we have a businessman. All of them are sitting और हम उनको बोलते हैं कि ये 3 problem है, इसको आप solve करो. अब most case में क्या होगा? They will say कि यार ये तो हमारा area नहीं है. This is not what we specialize in. So this is something that we can't solve. So now there is one circumstance under which all of them would have been able to at least approach this problem. वो ये नहीं बोलते कि यार ये तो अपना area है, so we can't do anything about it. What do you think that circumstance could be? Now you have to keep in mind that engineers, doctors, lawyers, architects, everyone is taught a certain way of approaching a problem, and they end up specializing कि यार मैं तो medical related issues को solve करता हूँ, मैं engineering related issues को solve करता हूँ. But actually whatever you learn is something that can be applied in multiple fields. But वो सोचने का एक वो उस तरीके का application करने के लिए एक approach आपको develop करना पड़ता है. And that approach is what we call as design thinking. Now, an interesting part about design thinking is कि this is ऐसे मतलब people might think मतलब I just want to clear this out for everyone that design thinking सिर्फ designers के लिए नहीं होता है. Design thinking is something that can be used by anyone, be it any profession, could be by a common man trying to solve a day-to-day problem inside the house. It could be by a businessman for improving their business strategies. It could be used by an engineer to come up with a new product. So that is the beauty of design thinking. So before I move on to talk about why design thinking is that circumstance in which anyone can approach any type of problem, let's first try to understand why design thinking, what is so special about design thinking. So अगर मैं आपसे पूछूं कि whenever there is a problem in front of you, a problem, like I said, there are many types of problems. So how do we start thinking about solving that problem? So let's take a very simple example, like I think all of you are college students or school kids. So suppose you go to a friend, you have a problem कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है. You go to a friend and you tell them कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है. तो एक टाइप का फ्रेंड होगा जो आपको बोलेगा यार I think तू डॉक्टर के पास चलेगा. Some people might say that. Now that type of thinking is what we call logical thinking, क्योंकि वो scientifically बोल रहे हैं कि doctors are the ones who deal with your health related issues. तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट आप कोई और फ्रेंड के पास जाओगे तो वो शायद ऐसा बोले आपको कि यार लग रहा है there is something troubling you, कुछ stress है शायद तेरे को, that is why you are not able to sleep properly. Now those are the friends who know you very well and probably they based on their experience कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो फिर अपना इंट्यूशन यूज करते हैं. तो इस टाइप ऑफ थिंकिंग को बोलते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग. इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इट इज एन इंट्यूशन. ऐसा लगता है कि यार आई थिंक ऐसा कुछ इशू होगा, बट दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर ऑब्जर्वेशन. एट द सेम टाइम कोई और फ्रेंड होगा जो बोलेगा यार मैं जानता हूँ हम किसको मिल सकते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. सो that type of thinking is what we call where we build a team or you collaborate with people. They are the ones who know कि हमें किसके पास जाना चाहिए, whom should we, whose help we should take, and they understand everyone's skill set, and then they say कि let's solve this problem in this way. So this example, by this example, I was trying to tell you that even when you are thinking, तो आपके थिंकिंग में ये these are the three very common types of approaches that people use. कोई लॉजिकली सोचता है, कोई इंट्यूटिवली सोचता है, कोई ऐसे ना कोलैबोरेटिवली सोचता है कि यार होता है ना एक दोस्त जिसको he knows आप उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो बोलेगा यार तुम इससे मिल लेगा या तुम मुझसे मिल लेगा. So they know, they have a network, they know whom to get in touch with. But so we'll just quickly discuss कि ये हर एक approach का फायदा क्या है, because अगर if people think like this, there must be some reason behind it, there must be some sort of a benefit to everything. So people who think logically, उनका every decision is informed, it is based on facts and it is very scientific.
So obviously the advantage is that आप हवा में तुक्का नहीं मार रहे हो. So whatever you decide to do is based on information that you have read or that you know. Now, intuitive thinking is based on experience, observation, and transferred knowledge. Now, there are many people who are not, educated, but उनका जो experience होता है, they have seen a lot of things or they have dealt with a lot of problems. So even if they are not able to explain scientifically कि ये ऐसा क्यों काम, for example, अगर आप अपने दादी के पास जाओगे, आपकी तबीयत खराब होगी, तो वो बोलती है ना कि तुम ये काम करो, तुम ये वाला चीज मिला के गर्म पानी में डाल के ये पी लो, आप ठीक हो जाओगे. तो वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे, बट उनका एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि उन्होंने देखा है बहुत लोगों को ऐसे करते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, किसी को करते हुए देखा है, तो उसके बेसिस पे तो एक इंट्यूटिव थिंकिंग आता है, जिसका अपना एक चार्म है, अपना एक बेनिफिट है. सिमिलरली व्हेन यू टीम अप में दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज everyone, all the people that you see around you, कोई भगवान तो नहीं होता. Everyone can't do everything. All of you, even if you get into design, for example, you will end up specializing कि यार या तो मैं product करूँगा या fashion करूँगा, या maybe you might take another discipline, architect बन जाओगे. तो हर किसी का एक strength होता है. But that doesn't mean that you cannot work on a project that is related with children. क्योंकि you may not be able to do it entirely on your own, but if you team up with someone who is a specialist in that area, तब आप दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली अभी का जमाना ऐसा है कि कोलैबोरेशन इज द फ्यूचर इन डिजाइन. अगर आप अभी का भी सिचुएशन देखो, लाइक ऑल ऑफ अस आर हैव बीन स्टक विद दिस वेरी डेडली वायरस एंड इट इज causing upheaval in our lives, but people are working together in solving these issues. क्योंकि इसमें कोई एक बंदा नहीं है, लॉयर सब कुछ नहीं सॉल्व कर सकता, या सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं सॉल्व कर सकता, सिर्फ एक डिजाइनर नहीं सॉल्व कर सकता. यहाँ पे टीम वर्क जब साथ में जाता है तभी चीजें सॉल्व होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी के एब्सेंस के वजह से लोग कोई प्रोजेक्ट करते नहीं, क्योंकि मेरे से तो नहीं होगा, बट वो ये नहीं सोचते कि वो किसी के साथ टीम बना के इसको सॉल्व कर सकते. सो नाउ द थिंग्स दैट वी डिस्कस अबाउट टिल नाउ, लॉजिक, इंट्यूशन, टीम अप, आपको क्या लगता है, डू वी थिंक इन साइलोस? आर देयर पीपल जो सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं, या कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंट्यूटिवली ही सोचते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ कोलैबोरेटिवली सोचते हैं? ऐसा नहीं है. इन रियलिटी आवर ब्रेन is always using all these three approaches simultaneously, because we have our mind and our brain is filled with so much information कि जैसे अगर आपके सामने अगर अभी एक टास्क आता है कि जैसे मास्क बनाना है, अभी कोरोना का ये अभी इशू चल रहा है, मास्क बनाना है, तो आप लॉजिकली भी सोचोगे कि यार मास्क ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे. फिर इंट्यूटिवली भी सोचोगे कि यार कहीं मास्क क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए पहनने में. तो इसको आप लॉजिकली नहीं डिफाइन कर सकते कि कंफर्ट क्या होता है, बट एक इंट्यूशन आता है, क्योंकि लोग बहुत देर तक पहनेंगे, उनको खराब लगेगा या उनको ना अनकंफर्टेबल लगेगा. एंड सिमिलरली जब आप बनाने जाओगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू माइट नो हाउ टू डील विद द मटेरियल. सो दैट इज वेयर यू थिंक यार ये बनाना तो आइडिया तो मिल गया, बट मैं बनाऊं कैसे? तो आई थिंक आई शुड गो टू अ वेंडर, or I should find someone who can stitch the mask, or someone who can make the mask. So whenever you are trying to solve, a human being is trying to solve a problem, they always think of all these three approaches simultaneously. So now just imagine कि अगर हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि हमारा ब्रेन लॉजिकली भी सोचता है, इंट्यूटिवली भी सोचता है, और कोलैबोरेटिवली भी सोचता है. बट व्हाट हैपेंस इज कि कुछ लोग हैं जो तीनों चीज साथ में तो सोचते हैं, बट कुछ लोग लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं, इंट्यूटिवली कम. कुछ लोग इंट्यूटिवली ज्यादा सोचते हैं, लॉजिकली कम. होता है ना कि आप अपने दोस्तों को भी बोलते होगे कि यार कोई लॉजिक ही नहीं है तेरे आइडिया में, बट वो कुछ एक गेस वर्क कर रहे होते हैं. बट कुछ लोग होते हैं कि वो एकदम ऐसे बहुत ही ऑब्वियस सोल्यूशन देते हैं. तो उसमें कभी कभी जब आप लॉजिकली सोचने जाते हो तो एक इनोवेटिवनेस मिसिंग हो जाती है. और कुछ लोग जो कोलैबोरेटिवली सोचते हैं, उनके पास it becomes too much of a dependency on someone else कि आपका अपना भी thought उसमें होना चाहिए. So one such approach जो इन सब चीजों को एक साथ combine करता है, वो है design thinking. Now how is design thinking different
if we go back to the first situation that I said कि अगर हम एक रूम में इतने सारे लोगों को रखे, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, और उनको हम ये 3 टाइप के प्रॉब्लम दें, जो है ना, एक कुछ एक्शन फिगर्स बनाना है कोई कार्टून शो के लिए, किसी का क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंप्रूव करना है, और किसी के स्कूल्स में लर्निंग हम कैसे एप्लीकेशन बेस्ड करें, तो वो लोग मतलब अगर वो लोग इस तरीके से सोच पाते तो वो हर कोई सिर्फ लॉजिकली सोच रहे होंगे, क्या लॉजिकली तो यार ये तो मुझसे होगा नहीं, बट इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ एक आइडिया तो होगा कि यार ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, बट अल्टीमेटली दे डिसाइड कि यार ये तो अपना एरिया नहीं, सो इट्स देयर इज नो यूज, एज इन वी वोंट बी एबल टू वर्क ऑन इट. But if all of them practice design thinking gives you the strength to be able to tackle any problem with confidence. क्योंकि पहली चीज जो आपके दिमाग से डिजाइन थिंकिंग हटा देता है वो तो ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि अकेले करना है, आप टीम बना के भी कर सकते हो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझो. Now what is good about what is interesting about design thinking is कि the three very common very basic points about design thinking is कि एक तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम चीजों को देखते हैं when we practice design thinking. तो अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा जाता है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि यार एक स्पून डिजाइन कर, तो कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि यार हाँ उन्होंने 5 स्पून देखा होगा तो उसी को वो थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि यार क्या एक स्पून उसी शेप का होना चाहिए जो हम देखते हैं आसपास. कभी कोई ये सोचता है कि हम अपने हाथ से खाते हैं तो क्या हमारा हाथ एक शेप हो सकता है स्पून का. तो ऐसी सोच तब आती है जब आप सेम प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, एंड डिजाइन थिंकिंग मेक श्योर दैट यू डू दैट. फिर है डिजाइन थिंकिंग का एक क्रिटिकल पार्ट है मेकिंग कनेक्शंस. अब ये मेकिंग कनेक्शंस इज व्हाट आई वांटेड टू फोकस ऑन इन दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, क्योंकि यही दिस इज according to me, this is what I feel from my personal experience in the design industry and teaching design, that making connections is the specialty or the superpower of a designer. क्योंकि आप जब एक अच्छा डिजाइन देखते हो ना आसपास, so all the good designs are most of the time very simple. ठीक है, तो जब आप एक डिजाइन आपने देखते हो कि which is a very good design and very simple, तो आप देख के बोलते हैं अरे यार ये तो कितना सिंपल डिजाइन है, कितना ऑब्वियस है, मैंने क्यों नहीं सोचा. सो दैट इज बिकॉज जो लोग डिजाइन थिंकिंग फॉलो करते हैं ना, दे मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, और वो डिफरेंट डेटा को कनेक्ट करके जो सॉल्यूशंस लेके आते हैं वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होता है, उसमें ज्यादा सोच जाती है. आप एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से नहीं सोचते, और उसी की वजह से उसमें इनोवेटिवनेस भी आती है. सो डिजाइन थिंकिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू कम अप विद मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ताकि आप उसमें से कुछ एक अच्छा वाला सिलेक्ट कर पाओ. Now, IDEO, I guess most of you would have heard about IDEO, and if someone has not heard about IDEO, I think you should definitely check it out. आप बस IDEO टाइप करो, उसका वेबसाइट आ जाएगा. अब जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखोगे, जैसे हॉस्पिटल्स है तो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, आप किसी IT कंपनी में जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स मिलेंगे, आप किसी आर्किटेक्चर फर्म में जाओगे तो वहाँ पे आर्किटेक्ट्स होंगे, लॉ फर्म में लॉयर्स होंगे. बट एक आइडियो एक ऐसी जगह है, अगर आप आइडियो में जाओ, उनके ऑफिस में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल फाइंड अ डॉक्टर, अ लॉयर, एन आर्किटेक्ट, ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर. And this is what I was telling earlier, the concept of teaming up, the concept of collaboration, the concept of design thinking. So IDEO is one of the I think the most popular pioneers of design thinking. They sort of brought design thinking into the industry and have given a lot of foundation to it. अब IDEO वालों के अगर आप वेबसाइट पे जाओ, उनके प्रोजेक्ट्स देखो ना, तो वो एक टाइप के प्रोजेक्ट नहीं करते. उनका प्रोजेक्ट वो मीडिया में काम करते हैं, वो स्पेसेस में काम करते हैं, वो एजुकेशन में काम करते हैं, वो गेम्स में काम करते हैं, वो प्रोडक्ट डिजाइन में काम करते हैं. Why do you think they are able to do that? इसलिए नहीं because IDEO has people who know how to do everything. It's because IDEO follows design thinking, and design thinking gives them the opportunity and gives them the power to tackle any type of project. So तो अब आप सोचोगे कि यार ठीक है, मतलब अभी तक हमने इतनी बात करी कि डिजाइन थिंकिंग का ये सब मतलब उसके स्पेशलिटीज हैं,
कि उसमें लोग साथ में काम कर सकते हैं, वो लॉजिकल इंट्यूशन, टीमिंग अप, ये सबको साथ में लेके काम करता है. बट देन there are so many other people who are also solving problems, वो डिजाइन थिंकिंग नहीं यूज कर रहे. तो डिजाइन थिंकिंग, why should we go for design thinking? Now I'll tell you one by one कुछ key points कि why design thinking is helpful. Because first of all, you can approach any problem with. अब आप जैसे साइंस पढ़ लेते हो, अब साइंस पढ़ने के बाद अगर आपको एक प्रॉब्लम, जैसे अभी बताया था कि एक एक्शन फिगर्स बनाने एक कार्टून शो के, तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच इज नॉट गोइंग टू. साइंटिफिक अप्रोच मेक्स यू वर्क इन प्रॉब्लम्स दैट आर मोर रिलेटेड विद साइंस. सिमिलरली हर एक डोमेन का एक एक अप्रोच है जो उसी डोमेन में काम करता है. डिजाइन थिंकिंग इज वन डोमेन which is not restricted to any type of problem. It caters to all types of problems. फिर डिजाइन थिंकिंग ही एक अप्रोच है, सिर्फ ये अप्रोच नहीं है. डिजाइन थिंकिंग में ऐसा होता है कि वो लॉजिक, इंट्यूशन और टीमिंग अप को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. वरना कुछ कुछ अप्रोचेस होते हैं उसमें, है ना, कभी इंट्यूशन ज्यादा होता है या लॉजिक कम रहता है. कुछ कुछ अप्रोचेस में लॉजिकल ज्यादा होता है, इंट्यूशन कम रहता है. तो और कुछ कुछ में शायद टीमिंग अप का फंडा रखता ही नहीं है, वो खुद ही करना चाहते हैं. तो डिजाइन थिंकिंग इज वन अप्रोच जहाँ पे ये तीनों चीजें साथ में काम करती है और इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस में ही एक पार्ट आता है जहाँ पे इट हेल्प्स यू टू मैप योर माइंड आउट. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अब जैसे आप सोचो, लेट्स गेट बैक टू दैट पॉइंट, जैसे स्पून डिजाइन करना, मैं आपको बोलता हूँ स्पून, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? आप स्पून सोचते हो, फिर आपके दिमाग में वो सारी इमेजेस आती है जो आपने देखी है, फिर आप मटेरियल के बारे में सोचते हो, फिर आप देखते हो लोग ऐसे पकड़ते हैं, अच्छा उसका इतना साइज होता है. तो व्हाट हैपेंस इन योर माइंड इज लाइक अ नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन. अलग अलग इंफॉर्मेशन है जो इंटरकनेक्टेड. तो आप एक साथ ये सारा डेटा नहीं देख पाते. आप एक पॉइंट पे जाते हो, फिर दूसरे पे जंप करते हो, फिर तीसरे पे जंप करते हो, चौथे पे जंप करते हो. कभी कभी दिमाग में ऐसा नहीं लगता कि यार एक आइडिया आ रहा है, मैं कुछ नया नहीं सोच पा रहा. That is because we are not able to see all our ideas at the same time. That is why it is very important. जो डिजाइन थिंकिंग इनकॉर्पोरेट करता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन समझते हो, वो आपको अपने सामने रखना होता है. तो उसको हम मैपिंग बोलते हैं, which becomes an integral part of design. So this really helps us in connecting information. Again, going back to connecting. So connecting becomes the critical component, which happens because we are able to map out our data. Then design thinking एक चीज है जो आपको इनोवेटिव होने में हेल्प करता है, बिकॉज वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप जो प्रॉब्लम जिस तरीके से देखते हो ना, उसको देखने का नजरिया वो बदल देता है. इट मेक्स यू थिंक like again, let's take someone tells you to design a spoon. अगर आप डिजाइन थिंक करो तो आप ये नहीं सोचोगे कि ठीक है मुझे बोला है कि मुझे स्पून डिजाइन करना है. इंस्टेड ऑफ दैट अ डिजाइन थिंकर वुड से कि आई हैव टू डिजाइन समथिंग दैट विल हेल्प मी ट्रांसफरिंग फूड फ्रॉम द प्लेट टू माय माउथ. तो वो जैसे ही वो स्पून वर्ड आप साइड कर देते हो और आप बोलते हो इट्स अ टूल टू कलेक्ट फूड फ्रॉम द प्लेट एंड पुट इट इन माय माउथ, तो आपका थिंकिंग और ब्रॉड हो जाएगा. एंड यू वोंट जस्ट थिंक कि हाँ स्पून होता है, उसका ऐसा शेप होता है. यू कैन एक्चुअली, तब हो सकता है आप ये भी सोचो कि एक्चुअली थिंकिंग ऑफ इट कि रोटी भी एक टाइप का स्पून ही है. आप रोटी से क्या करते हो? रोटी में सब्जी लेते हो. वो एक तरीके का एडिबल स्पून है, जो स्पून वेस्ट भी नहीं होता है, वो स्पून आप खा जाते हो. तो ऐसे इट हेल्प्स यू इन थिंकिंग इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. आप अलग अलग डायरेक्शंस में सोच पाते हो. सो नाउ ठीक है, मतलब डिजाइन थिंकिंग. So I hope all of you are at least getting an idea about how design thinking is different from the other approaches that people take. उसका एक benefit है. So now we'll talk about how design thinking can be practiced. Now design thinking, like I said in the beginning, अगर आप Google करोगे, है ना, so the image that you see on the presentation, I just want to cross check, is everyone able to hear me? Is everything okay? Yes, sir. Yes, sir. Cool. Fine. So Yes, sir. so just imagine कि Yes, sir. just imagine कि आप डिजाइन थिंकिंग को अगर आप गूगल करते हो तो इमेजिन क्या, आपको तो आप करके देख ही सकते हो. तो यू विल फाइंड सो मेनी फ्रेमवर्क्स, IDEO, स्टैनफोर्ड,
IBM, so many companies who adopt design thinking, and these are companies who don't deal only with design. कोई business में expertise रखते हैं, कोई science में expertise रखते हैं, MIT science वाले काम करता है, तो इनके सबके design departments इन्होंने बनाए, and they have made their own approaches. Now, तो अगर आपको डिजाइन थिंकिंग सीखना है तो देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, मतलब आई डोंट हैव टू टीच यू डिजाइन थिंकिंग एंड दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे आल्सो, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब आप ये सब पढ़ने जाओगे ना तो द द ब्यूटी अबाउट डिजाइन थिंकिंग इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही वो सिंपल स्टेजेस में बताते हैं, जैसे आईडियो का बहुत पॉपुलर है, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। दीज आर वर्ड्स जो अपना डे टू डे लाइफ वर्ड्स है। जैसे साइंस में जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इंजीनियरिंग में टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज डिजाइन थिंकिंग इज कनेक्टेड, वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद लाइफ। बट द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अबाउट डिजाइन थिंकिंग इज कि हर एक स्टेज में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। कि अगर आपको एक यूजर से कोई प्रॉब्लम, अगेन इफ यू टेक द स्पून वाला एग्जांपल, तो आप कैसे समझोगे जो जिनके लिए बनाने वाले हो, सपोज आप छोटे बच्चे के लिए एक स्पून बनाने वाले हो, तो आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, ये कैसे समझोगे कि बच्चे को कैसे स्पून पसंद, तो उसके लिए ना अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। सिमिलरली जब आप प्रोटोटाइप बनाओगे तो उसके लिए अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, आप जब कनेक्शन करोगे उसके मेथड्स अलग होते हैं। सो research methods, ideation methods, conceptualization methods, there are so many varieties. तो it is easy to understand, but जब आप apply करने जाते हो, it can only become better with practice. आप जितना practice करोगे उतना आपको समझ आएगा कि हाँ, जब ये वाला टाइप का प्रॉब्लम, we are dealing with this kind of a problem and we are dealing with this kind of a user, आपको ये मेथड यूज करना चाहिए in combination with this method, in combination with another method. तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ बताने से कोई नहीं समझेगा. That is why we have design schools actually. I think all of you who are actually studying right now and who are planning to study design, मतलब there will be one specialization that will definitely you'll take up, like we were talking earlier, क्या product है, animation है, graphics है, किसी एक में आप चाहोगे. But design at the core it is multidisciplinary. ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट डिजाइनर ग्राफिक का काम नहीं करेगा आप जब खत्म करोगे. ऐसा नहीं कि ग्राफिक डिजाइनर प्रोडक्ट का काम नहीं कर सकता. ये इंटरकनेक्शन इसलिए है क्योंकि what we actually learn in design schools is design thinking, is how to approach a problem. एंड हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो हमको हेल्प करता है कि हाँ, अगर ग्राफिक रिलेटेड काम है तो हो सकता है मुझे कोलैबोरेट करने की जरूरत ना हो, मैं खुद ही करूँ. बट एट द सेम टाइम डिजाइन थिंकिंग आपको ये पावर देता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर किसी और के साथ काम करके प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकता है. So design thinking in that way is quite complicated. It's not something that anyone can teach anyone. वो आपको बताया जा सकता है, but if you want to become good at it, you have to practice it. आप जितने projects करोगे, आप जितनी बार उसको apply करोगे अपने life में, उतना आप सीखोगे. So design school becomes the perfect place because वहाँ पे आए दिन आप design projects करते हो, आप design के बारे में बात करते हो. So that is where you improve yourself. तो आप सोच रहे होगे कि यार मैं तो कह रहा हूँ कि डिजाइन थिंकिंग सिखाई नहीं जाता, तो देन व्हाई एम आई गिविंग दिस वेबिनार एंड व्हाई आर ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर. So that is why I had written right in the beginning, instead of writing design thinking, I wrote that about problem solving by making connections. So if you are able to understand that line, making connections, those two words, that is the critical thing. अगर आप वो concept समझ जाते हो तो उसका core, from what I understand, from my experience, what I understand is कि design thinking में it's all about फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड देन आप एक इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नया मीनिंग निकालते. वो मीनिंग वो ऐसा मीनिंग होता है जो एक कॉमन मैन नहीं देख सकता. जैसे कि आप कोई लोगो देखते हो, ठीक है, अगर दो लोग बैठ के एक लोगो को देख रहे हैं, फोर्टिस का लोगो मुझे याद है, इट इज ऐसे ना दो हाथ जोड़े हुए हैं, ग्रीन कलर का लोगो. अगर एक कॉमन मैन देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ, दो हाथ ऐसे करके उन्होंने लोगो बनाया. बट जब एक डिजाइनर देखेगा वो देखेगा कि जो हाथ के बीच में नेगेटिव स्पेस है वहां पे एक ह्यूमन बीइंग बना है, तो इट इज प्रोटेक्टिंग अ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्टिस इज अ हॉस्पिटल. अब ये जो ये कनेक्ट करने वाली बात है, ये कनेक्ट करने वाला जो स्किल है, ये एक डिजाइनर का सुपर पावर होता है. दैट इज व्हाट आई कि इफ वी थिंक दैट डिजाइनर्स आर सुपर हीरोज, उनका सुपर पावर है डेटा कनेक्ट करके नया मीनिंग बनाना.
मीनिंग यूज करके सॉल्यूशंस. So yeah, I'll go back to the previous slide. So what I thought of here is कि it will be too complex for me, in this one like next 15-20 minutes to explain to you design thinking. वो तो जब practice करेंगे तभी वो उसका असली मजा आता है उसको समझने में. But what I can do here is कि this is based on my experience, the projects that I have done, the methods that I have followed. एक sort of beginner's kit, एक framework मैंने बनाया है, which is something that anyone can just pick and directly apply. उसमें आपको complications नहीं होगा कि यार इन्होंने लिख तो दिया है कि data collect करना है, what is data collection, या फिर research करना है, क्या बोलते हैं, you do different types of interviews या observational interviews या फिर ethnography करते हैं. So these are very वो थोड़ा complicated होते हैं. So I thought I'll share with you a very basic kit that is something that you can start applying. So for the kids who are preparing for the design school exams, तो उसमें कभी ना कभी तो एक question आएगा कि कुछ नया design करो. तो maybe this is a kit that you can practice at home and then probably क्या बोलते हैं, you can become better at it and you can quickly come to a solution. So yeah. So now for that kit and generally in design thinking, the common foundation of any design thinking framework, आपको बहुत सारे framework मिलेंगे. तो जो उसका core ये रहता है कि सबसे पहले तो आप problem frame करते हो. जैसे कि मैंने बोला कि instead of saying that design a new spoon, you should say you have to design a tool to transfer food from the plate to the mouth. तो फिर आपका जो भी आप solution सोचोगे वो एकदम अलग टाइप की चीज हो सकती है. It can be something that can be eaten. It could be circular. It could be just a flat. जैसे अगर आपको एक piece of paper दे दे तो actually उसे भी खाना खा ही सकते हैं उस टाइप के फॉर्म से. तो फिर वो आपको हेल्प करता है अलग तरीके से सोचने में. So problem framing becomes very important. Second is collecting data types. So this collecting data types is very important. आप देखोगे कि बहुत लोग हैं, बहुत कंपनीज में बहुत लोग आते हैं, कौन रिसर्च में टाइम स्पेंड करे. अब उसमें क्या होता है कि वो लोग बार बार एक ही चीज बना रहे होते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया. ये सब करने वाले वो लोग हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो रिसर्च करते हैं. एंड रिसर्च हेल्प्स यू इन लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. देन कम्स द डिजाइनर का सुपर पावर विच इज टू कनेक्ट. जब आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है तो उसमें से अगर आपको कुछ नया इंसाइट निकालना है या नया मीनिंग निकालना है तो आप डेटा को कनेक्ट करते हैं. अच्छा, इसने ऐसा बोला, इसका मतलब हमें ये करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट जब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, देन यू प्लान सॉल्यूशंस, यू मेक मॉकअप्स, उसको आप टेस्ट करते हो और फिर ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको टेस्ट किया, इशू आया, तो वापस से वो आपका नया प्रॉब्लम बन जाता है. फिर उसको और समझने के लिए और डेटा कलेक्ट करते हो. ऐसे 2-3 राउंड करते हो तो यू आर एबल टू रीच टू अ फाइनल कंक्लूजन. So now I'll just quickly take you through the framework. अभी आप सुन लो. On the last slide, I have the entire screen has the entire framework made. So maybe you can take a screenshot of that for your आपको याद रखने के लिए कि ये कैसा था इसका framework. So I have again written those 3 problems जो मैंने पहले लिखे थे. I have taken something complicated. मतलब मैं कुछ सिंपल नहीं लेना चाहता क्योंकि सिंपल जैसे स्पून वाला एग्जांपल है या फ्रूट्स वाला एग्जांपल है, ये सब बहुत ऑब्वियस है. I think we should take up some more real life things that actually designers tackle, or not only designers, there are many people who tackle this. तो पहले प्रॉब्लम क्लियर कर लेते हैं कि पहला प्रॉब्लम है किड्स का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंप्रूव करना है. दूसरा है चिल्ड्रन अपना लर्निंग अप्लाई नहीं करते, स्कूल में जो पढ़ते हैं स्कूल तक ही रह जाता है. तीसरा है एक्शन फिगर्स बनाने कार्टून शो के. अब ये बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, हाँ, बट एक है कि ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, व्हिच इज आल्सो अ यूजर इंटरेस्टिंग यूजर टू वर्क विद. तो सबसे पहले है प्रॉब्लम टू अपॉर्चुनिटी. तो ये है फेज 1. अब ये वाला फेज अगर आप अच्छे से करो तो आप ऑटोमेटिकली एक इनोवेटिवनेस के डायरेक्शन में यू विल स्टार्ट मूविंग. नाउ हियर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज कन्वर्ट द प्रॉब्लम टू एन अपॉर्चुनिटी. You reframe the question by clarifying the actual need that you're trying to attend to. For example, अगर पहले ये वाले एग्जांपल्स पढ़ लेते जो मैंने स्लाइड में लिखे हैं, जो स्पून वाला है
कि instead of saying design a spoon, you should say tool to put food from plate at your mouth. अब कोई बोलता है have to design a classroom, तो क्लासरूम बोलते दिमाग में आता है ना, टेबल होते हैं, चेयर होते हैं, टीचर या खड़ी रहती है, प्लेटफॉर्म होता है, तो एक इमेज ऑलरेडी it's made in your head. How do you break away from that? So then don't use the word classroom. You say a space to be able to engage students with academic content. क्लासरूम में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं. अब क्योंकि क्लासरूम है, imagine if there is no class at all. Suppose you're taking kids to a garden and then you're, I don't know, teaching them about plants. So you automatically start thinking, so that's a space, it's an open space. Space doesn't mean it needs to have walls. And it doesn't mean there should be tables and chairs. It doesn't mean that, there should be a platform on which a teacher is standing. So automatically, इसी stage में, you are able to open yourself up. You are able to understand कि actually हमें करना क्या है. अब कोई आपको बोलता है कि एक बेंच डिजाइन कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ना बहुत सारी इमेजेस आएंगे. मैंने ये बेंच यहाँ देखा है, मैंने ग्राउंड में ये वाला बेंच देखा है, मैंने अपने फ्लैट के नीचे ये वाला बेंच देखा है. बट एक्चुअली बेंच होता किस लिए है? बैठने के लिए. तो यू शुड रीफ्रेम योर प्रॉब्लम बाय सेइंग टू डिजाइन अ स्पेस फॉर द पब्लिक टू रेस्ट. अब जब ऐसे आप सोचने जाओगे तो आप सोचोगे यार लोग बैठते कहाँ पर? हम तो यार एक मोटा सा पाइप होता था तो उसके ऊपर बैठ जाते थे, एक 2-3 ब्रिक्स रखे हुए हैं तो उसी को चेयर बना के उस पर बैठ जाते थे. So there are so many different ways that you can look at of making a seating arrangement in a public space for children or for elders. तो यूजर के अकॉर्डिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज. सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल फेज, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका बढ़िया जाता है तो फिर एवरीथिंग एल्स फिट्स इनटू पिक्चर. नाउ गोइंग बैक टू द प्रॉब्लम्स, जैसे ट्रेनिंग किड्स टू इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, तो उसको मैं बोलूंगा कि इट्स अ टूल to make kids think strategically. उनका स्ट्रेटेजिक कैसे ना प्रैक्टिस होता है. जो ट्रेनिंग वर्ड होता है दिमाग में आता है कि हाँ कुछ क्लास में कुछ कोर्स होना चाहिए, स्कूल में कोई क्लास होना चाहिए, या फिर कोई टीचर को बुलाना चाहिए, या फिर जैसे एक्सरसाइज करना है ना, ट्रेनिंग वर्ड सुनते ही ये सब चीजें दिमाग में आती है. दूसरा है चिल्ड्रन डोंट अप्लाई द लर्निंग, तो इसके लिए वी शुड रीफ्रेम इट एज कनेक्टिंग स्कूल लर्निंग विद रियल लाइफ लर्निंग. तो मैं इसको रिफ्रेम करके ऐसा अपॉर्चुनिटी बना, तुम उसको प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी बना. एक्शन फिगर्स फॉर अ कार्टून शो. अब एक्शन फिगर होता है किस लिए? वो एक कार्टून शो को पॉपुलर करने के लिए होता है, तभी वो बच्चे उसको और इंटरेस्टेड लेते हैं, फिर वो अल्टीमेटली दे आल्सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मर्चेंडाइज. तो इट इज समथिंग टू मेक अ शो मोर पॉपुलर. दिस इज द फर्स्ट फेज. Now, आपका second phase is collecting data types. So there will be 3. So for this framework, I have because this is like a beginner's kit, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं इसमें ऐड कर रहा हूँ. But just to start off, maybe this is what you can do. First is आप collect करो आपके observations. Now observations, it becomes part of your logical thinking. तो जैसे so I'll तो अब ऑब्जर्वेशंस आप कैसे देखोगे? तो सबसे पहले तो यू पुट द रीफ्रेम्ड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू. तो जैसे हमने बोला कि किड्स का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए, कनेक्टिंग स्कूल लर्निंग विद रियल लाइफ लर्निंग, एंड एक्शन फिगर्स टू मेक द शो मोर पॉपुलर. मर्चेंडाइजिंग फॉर अ कार्टून शो. तो जरूरी नहीं है एक्शन फिगर्स हीरो. एक्शन फिगर्स बोलते दिमाग में आता है जैसे ही मैन का, बैटमैन का, सुपरमैन का एक्शन फिगर. You will only think about that and you'll end up making something like that. So it is, let's say, merchandising for a show. अब इसमें, like I've written in the second statement, in this stage, you have to use your experience and instincts. So let's say I've given a couple of questions that you can use as prompters. कि what will be its function? तो let's say पहला वाला है कि बच्चों को अपना strategic thinking का practice करना. तो उसका function क्या होगा? उसमें दे शुड बी, उनको स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, प्लानिंग यूज करनी पड़ेगी, वट एवर यू मेक. इफ इट इज कनेक्टिंग इन द सेकेंड प्रॉब्लम, इफ इट इज कनेक्टिंग स्कूल लर्निंग विद रियल लाइफ लर्निंग, उसका फंक्शन वही रहेगा जैसा ब्रीफ है कि वट एवर दे स्टडी इन क्लास. अगर जैसे मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको अपने रियल लाइफ में क्या क्या मेटल्स है उसके साथ एक कनेक्शन बिठाना चाहिए. जब वो चीज वो देखने लगेंगे तब उनका एप्लीकेशन इंप्रूव होगा. वेयर विल इट बी यूज्ड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, अगर डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करना, सो द बेस्ट प्लेस इज द होम. तो कुछ हमें ऐसा सोचना है जो घर में यूज हो सके, घर के उसमें रख सके लोग.
जो चिल्ड्रन का एप्लीकेशन है लर्निंग और वो रियल लाइफ लर्निंग एंड स्कूल लर्निंग, तो दिस शुड बी समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन द होम एज वेल एज इन द स्कूल. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नहीं तो क्योंकि रियल लाइफ तो आपका घर पे ही होता है ना, रियल लाइफ तो स्कूल में नहीं होता. स्कूल में तो आप स्कूल के एनवायरनमेंट में होते हो, वो एक एनवायरनमेंट आपको पढ़ाने के लिए बनाया जाता है. बट आपका रियल लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो ट्रैवलिंग के टाइम पे घर जाते हो, अपने रिलेटिव्स से मिलते हो, तो वो वाला एक्सपीरियंस होता है. सिमिलरली मर्चेंडाइजिंग में वो ऐसे चीजें होंगे. अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, जैसे फॉर मर्चेंडाइजिंग उसमें क्वेश्चन है वेयर विल इट बी यूज्ड. एक तो हो सकता है घर पे, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर शो को पॉपुलर करना है, अगर वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो बाहर भी लेके जा सके अपने साथ, तो जब बाहर लेके जाएंगे तो और बच्चे देखेंगे, और बच्चे देखेंगे तो शो और पॉपुलर होगा. So you see, all these questions, they help you think. They make you understand the problem in a different perspective. Next is prepare for the unseen. अब ये वाला intuitive direction में जाता है, because you will now think about थोड़ा futuristic उसमें हम जाएंगे, आगे का सोचेंगे. जैसे हम बोलते हैं like a problem becomes difficult to solve if you don't know what are the things that are not in your control. So basically कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये हम नहीं कर सकते. ये पहले से पता हो तो अच्छा है, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ आइडिया सोचेंगे, फिर बाद में पता चलेगा अरे ये तो बन नहीं सकता, या फिर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर ये मटेरियल अच्छा है. सो अगेन आई हैव मेंशन्ड सम प्रॉम्प्टर्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. तो अभी तो प्लास्टिक इज सच अ बिग नो नो. सो ऑब्वियसली ये सब जानकारी बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक इज समथिंग दैट इज वेरी easily you can manufacture, but if you are able to think of a solution that is not made from plastic, it can be eco-friendly, it will have much more value. Safety of user, ab yahan safety becomes very important in this case because sub children but then again age group also matters. For example action figures to aajkal plastic mein kharab quality wale mein bhi bante hain, so by chance if it has some poisonous particles, so these are some things that you need to be aware of. अब budget, अब पहले वाले प्रॉब्लम में अगर हम जाएंगे कि वो घर के लिए, तो इट विल बी ऑब्वियसली समथिंग दैट द पेरेंट्स विल बाय. अब हमें समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स कितना खर्चा करेंगे किसी बच्चे के साइंटिफिक थिंकिंग इंप्रूव करने में, उसका एक लिमिट है. दूसरा है वो मोस्टली स्कूल्स और घर में यूज होता है, तो वो और सस्ता होना चाहिए क्योंकि वो स्कूल को बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले ही देंगे ना, क्योंकि उनको करना ही था. तो स्कूल वाले जब बनाएंगे, वो एक क्लास में 50 बच्चे हैं और ऐसे उनके बाद और 5 सेक्शन है, तो ऐसे 250-300 स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाने, तो इट कांट बी एक्सपेंसिव. इट हैज टू बी समथिंग वेरी चीप एंड सो दैट दे कैन मास मैन्युफैक्चर. फिर है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी. मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आप कुछ सोचते हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से बना पाए, उनके वो स्कोप में हो बनाने के. सो दिस इज वेयर यू प्रिपेयर फॉर द अनसीन. फिर the third part of data collection is knowing the user, which I think most of you, well I am sure कि मैं आधी चीजें जो इधर बता रहा हूँ, this is something that you are obviously you know कि आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो काफी obvious है, आप जिसके लिए बना रहे हो उसके साथ तो आपको बात करनी पड़ेगी. So this is where the collaboration part comes in, where you collaborating with the user to understand कि उनके opinion क्या है opportunity के बारे में. कि अब जब बच्चे के लिए हम बना रहे हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आपको क्यों स्कूल की पढ़ाई आप घर पे अप्लाई क्यों नहीं करते. या फिर आप उनसे पूछोगे कि जो कार्टून आप देखते हो उनके एक्शन फिगर्स आपको कैसे पसंद है, अलग अलग टाइप के क्या क्या चीज़ों के साथ वो खेलते हैं. तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो खेले भी और वो इसके साथ भी कनेक्ट हो. तो इधर से आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू connect with the user. So similarly, you ask them about their opinion, their problems, उनका experience with the existing products that are there, or sometimes you can also ask them कि अगर ऐसा कुछ बने तो कैसा होना चाहिए. Sometimes they can also give you very interesting directions to think. So this becomes your phase 2. तो पहला था problem to opportunity, आपका second phase था where you collect data. तो data के मैंने for like in the beginning phase when you're dealing with design thinking, these are 3 things that you can look at. Your observations, you prepare for the unseen, and then you try to know the user. Now this is the part, third phase, this is what you need to improve or make yourself more better at if you want to be a good designer, is connecting. तो ये जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, जैसा अगर हम पीछे वाले स्लाइड में जाएं, तो अगर ये मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, इफ यू आर एक्चुअली डूइंग दिस, ये सब डेटा आपको कहीं लिख के
स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में आपको अपने आगे रखना चाहिए। एक सेक्शन में योर ऑब्जर्वेशंस, एक सेक्शन में प्रिपेयर फॉर द अनसीन, एक सेक्शन में यू नो द यूजर, सब डेटा सामने रखो। उसके बाद आप इनके बीच में कनेक्शंस निकालोगे। तो कनेक्शंस निकालने के लिए भी कुछ प्रॉम्प्टर्स ऐसे हो सकते हैं। पहला प्रॉम्प्ट हो सकता है व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। तो सपोज अब इस स्टेज में आप you're मूविंग क्लोजर टू कि हमें बनाना क्या चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे पहला वाला था स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इंप्रूव करने वाला। तो ऑब्जर्वेशन ये आया था कि वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो घर में मतलब डेली रोज प्रैक्टिस डेली कर सके। इट्स एन एक्टिविटी दैट वुड दे वुड डू डेली। अगर डेली करना है तो इट शुड बी समथिंग दैट दे शुड एंजॉय मेकिंग इट। अब ये है तो इट शुड बी समथिंग। हमने प्रिपेयर फॉर द अनसीन में उसका बजट के जब हम बारे में सोच रहे थे, तो क्योंकि घर का सामान है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो पेरेंट्स खरीद सके, अफोर्ड कर सके। फिर जब आप यूजर से बात करोगे तो हो सकता है यूजर बोले कि यार कुछ ऐसे बोरिंग सा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग फन बिकॉज यू मेकिंग इट फॉर किड्स। तो अब आप इन तीनों चीजों को कनेक्ट करोगे तो आपको एक आएगा कि इट शुड बी अ प्रोडक्ट दैट शुड बी विद इन द बजट ऑफ अ फैमिली एंड इट शुड बी फन टू यूज। तो जैसे ये दो वर्ड्स आ जाते हैं, you know there can be different types of ideas that can start popping up into your head. Suppose let's take जो लर्निंग वाला है, स्कूल लर्निंग और ये लर्निंग अप्लाई करने का, उसमें जैसे बजट का पॉइंट आता है कि इट शुड बी वेरी चीप। देन स्कूल, जब आप यूजर से बात करें तो बोल देते हैं कि स्कूल में जो पढ़ते हैं उसमें मजा नहीं आता है, ऐसा एक पॉइंट मिला होगा। तो उसको आप ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट करोगे कि इट शुड नॉट बी बोरिंग, इट शुड बी समथिंग फन, समथिंग, क्योंकि अगेन चिल्ड्रन आर इन। तो इसी तरीके से यू कनेक्ट डेटा, जो ऑब्जर्वेशन का डेटा है उसको अनसीन, प्रिपेयर फॉर द अनसीन वाले सेक्शन से कनेक्ट करो, जो यूजर का डेटा है उसको किसी और से कनेक्ट करो। तो ऐसे करके आपको अपने आंसर्स मिलते हैं। सिमिलरली एक प्रॉम्प्ट हो सकता है वेयर शुड द सोल्यूशन बी यूज। सो ऑब्वियसली पहला वाला तो घर के सिनारियो में है, सेकंड प्रॉब्लम स्कूल और घर दोनों में यूज हो, और तीसरा वाला जैसे हमने बोला था कि वो डेटा से मिल सकता है कि इट इज समथिंग दैट दे शुड बी एबल टू टेक आउटसाइड, घर पे भी खेल सके, दूसरों को भी दिखा सके। तो ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प यू इन कमिंग अप विद अ बेटर सोल्यूशन। और जो तीसरा वाला है उसका पार्ट इज हाउ शुड द सोल्यूशन बी यूज्ड। नाउ हाउ शुड द सोल्यूशन बी यूज्ड इज मोर लाइक एन इंटरैक्शन, कैसा रहेगा। जैसे पहला वाला है इट शुड बी फन, दैट इज द काइंड ऑफ इंटरैक्शन। दूसरे वाले में भी इट शुड नॉट बी वेरी एकेडमिक, जैसे स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है टेक्स्ट, टेक्स्ट इतना सारा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड कुछ होना चाहिए। सिमिलरली जो एक्शन फिगर या मर्चेंडाइजिंग जो बनाना है, अगेन इट अगर अभी के उसमें देखें तो जैसे इको फ्रेंडली मटेरियल के साथ अगर वो इंटरेक्ट करें तो पेरेंट्स ऑल्सो फील सेफ। एट द सेम टाइम अगर आप एक देखोगे जो एक्शन फिगर्स होते हैं उसमें सिर्फ हाथ मूव करते हैं, पैर मूव करते हैं, तो क्या हम इंटरेक्शन और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं? क्या उसमें कुछ और चीजें भी हम पर्सनलाइजेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि? तो so actually right now all these points that I'm saying, मैं मतलब I'm just randomly thinking and talking about this। अब जब इसको अभी से हम देख सकते हैं कि इतना सारा डेटा पॉइंट्स होता है जो हम दिमाग में सेव करके नहीं रख सकते। तो वट एवर यू कलेक्ट आप पेपर में लगाते जाओ, सामने लिखते जाओ, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करो, कनेक्ट करो, फिर आप ये वाला सेक्शन फिर से लिखो कि इसका व्हाट, हाउ, वेयर वाला point। तो इसी तरीके से आपका ये एक पहला सेगमेंट है जहाँ में पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिफ्रेम किया, डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको कनेक्ट किया इन तीनों के साथ। अब जब आपको ये व्हाट, वेयर, हाउ, तो आपको एक बेसिकली आपको ना वो मिल जाता है कि जैसे पहले स्टार्ट किया था कि ऐसा कुछ बनाना है, फिर आप इधर ऐसे स्टेज पे आ जाते हो जहाँ पे आपको एग्जैक्टली कुछ कुछ डायरेक्शंस मिल जाते हैं। इट शुड बी फन, इट शुड बी चीप, it should not be boring, there should be less text, can there be more interactivity in the action figure, हम उसको क्या बाहर लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको ऑलरेडी डायरेक्शंस मिल जाते हैं काम करने के। दिस इज अनदर सेगमेंट। ये वाले सेगमेंट में हम तब आते हैं जब आपका कनेक्टिंग द डेटा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग द डेटा एंड कनेक्टिंग द डेटा। ये तीनों चीजें होने के बाद आप इधर आते हो जहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बनाने लग जाते हो। तो कॉन्सेप्ट बनाने से पहले अगर एक कॉन्सेप्ट है तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा या जो भी आप इनमें सोल्यूशन बना रहे हो उसका लुक कैसा होना चाहिए। तो सिर्फ लुक के बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि एक प्रोडक्ट का, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लो ना, उसके ये तीन कोर एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज द लुक एंड फील,
जो लुक होता है उसका फॉर्म, उसका शेप, उसका मटेरियल, और उसका फील होता है जो इंटरेक्शन होगा, आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है उसके साथ, और फंक्शन तो उसका जो पर्पस है। तो आप ये चीजें अलग अलग लिखोगे। सो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्शन फिगर और मर्चेंडाइजिंग, हमने उसको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में बोला था कि मर्चेंडाइजिंग हम करेंगे। तो उसका लुक ऐसा होना चाहिए जो कैरेक्टर के साथ मैच करे कार्टून शो का। फील ऐसा होना चाहिए, जो भी उसका स्टोरी है वो मतलब वो वाला एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए। तो अगर वो कैरेक्टर अंडर वाटर कैरेक्टर है तो आपको उसको टच करने में ऐसा लगना चाहिए, या उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि अंडर वाटर हो। फिर आप उसके साथ है ना स्टोरी टेलिंग कर सको, स्टोरी टेलिंग करेंगे तभी वो कार्टून शो के साथ कनेक्ट हो। फंक्शन उसका होना चाहिए कि वो एकदम कैरेक्टर जैसा भी दिखे, उसमें कुछ नया इंटरेक्शन अगर हम डाल सकें। बाकी सारे कैरेक्टर्स में तो हाथ पैर ही मूव करते हैं, इसमें क्या हम कुछ और नया फंक्शन डाल सकते हैं कि विच विल ऐड मोर प्ले टू इट। तो ये इसमें भी अगेन लुक सेपरेटली, अब लुक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो सेपरेटली, फील के बारे में सेपरेटली, फंक्शन के बारे में। एंड आफ्टर दिस, जब आपके पास ये पॉइंट्स हो जाते हैं, फिर आप आइडियाज बनाने लगते हैं कि ठीक है, मैं जैसे अगर हम लर्निंग वाला प्रॉब्लम ले कि स्कूल का लर्निंग हमें बाहर के रियल लाइफ लर्निंग से कनेक्ट करना है, तो लुक में ऐसा आएगा कि इट शुड बी फन। स्कूल के बुक सारे बोरिंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से बच्चों को मजा नहीं आता स्कूल, तो इट शुड बी समथिंग दैट लुक्स फन, कलरफुल। फील होना चाहिए समथिंग दैट इज मोर, इट्स नॉट वन वे कि हम टेक्स्ट है पढ़ रहे हैं या इमेजेस हैं देख रहे हैं, समथिंग दैट वी कैन डू, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी। और फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो उसको बाहर अपने आसपास जो चीजें देख रहे हो उसके साथ कनेक्ट करो। तो ये हम साथ में कंबाइन करके एक आइडिया सोचते हैं। तो जब हम आइडिया सोचते हैं, उसको हम अलग अलग तरीकों से उसका मॉकअप हमें बनाना पड़ता है, which you can start with sketching is obviously a very popular tool that you can use for making ideas. कभी कभी जब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आपके आसपास जो एग्जिस्टिंग थिंग्स है आप उनको भी लेके प्रोडक्ट्स बना सकते हो, सिर्फ पेपर और टेप, या फिर जैसे अगर हमें अगर एक स्पून जैसा बनाना है, तो अगर आप एक ढक्कन ले लो किसी बोतल का, जो बड़े वाले जार का एक ढक्कन ले लो, बड़ा वाला ढक्कन, और उससे एक बार है ना देखो कि क्या हमसे खाना ले सकते हैं। तो जब आप उससे आप खाना लेके मुंह में रखोगे तो आपको देखोगे तो इसमें हो रहा है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसको थोड़ा कट करो, थोड़ा मॉडिफाई करो। तो वो एक तरीका है। सिमिलरली प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो आप, पेपर, कार्डबोर्ड और टेप और फेविकॉल, इन सबके साथ आप फॉर्म्स बना सकते हो। क्ले इज ऑल्सो वेरी गुड मीडियम, क्ले के साथ आप शेप्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाउ ये सब चीजें इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से, बट ऑनेस्टली ये जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे, जो ऑफकोर्स हम वेबिनार में नहीं कर सकते, इसलिए अगेन आई से दैट इज व्हाई वी गो टू अ डिजाइन स्कूल। मतलब जो लोगों को लगता है कि डिजाइन इज समथिंग हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इट इज नॉट दैट। इसलिए डिजाइन स्कूल जाना जरूरी है। डिजाइन स्कूल में ये सब चीजें आपको अलग अलग तरीके से सिखाई जाती है, प्रोटोटाइपिंग, स्केचिंग, ये सब अलग अलग इसके मॉड्यूल्स हैं। एंड डिजाइन थिंकिंग इज द वन पे जहाँ पे सब कुछ एक साथ आ जाता है। So that is why I say कि design is not about the individual disciplines, but it is more multidisciplinary where you bring everything together. So yes, so this is where you start making some mockups, and after you make a mockup, you test it with the user. User के पास लेके जाओ, फिर आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, फिर आप ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपने कुछ टूल बनाया स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए, जब बच्चे के पास लेके गए, वो बोल रहे हैं कि उसको मजा नहीं आ रहा, तो आप उसको वापस से बोलोगे कि हाँ फन इसमें मिसिंग है, तो आप फन, द प्रोडक्ट शुड बी फन, दैट बिकम्स ए न्यू प्रॉब्लम। तो फिर आप उसके लिए कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करोगे फिर से, जैसे पहले किया था, बट दिस थिंग विल हैपन मच मोर क्विकली क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। सो दिस इज बेसिकली द ओवरऑल फ्रेमवर्क। सो वन थिंग आई वांट टू से एट दिस स्टेज इज दैट इवन दो मैंने इतने सारे स्टेजेस, इतने सारे पॉइंट्स आपको बताए, बट ऐसा है नहीं कि आप जब काम करोगे तो आप पहले ऑब्जर्वेशन करो, पहले ये करो। आप 2-3 बार ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब नेचुरली आपके ब्रेन में होने लगेगा। एंड द मोर बेटर यू बिकम एट इट, द मोर एक्सपीरियंस यू गेन, यू डोंट इवन हैव टू राइट थिंग्स डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, ये सब आपके दिमाग में होने लगेगा, बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट टू स्टार्ट ऑफ, आई थॉट कि ये एक फ्रेमवर्क मैंने सोचा था विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू एंड प्रॉब्ली समथिंग दैट यू कैन यूज। सो so like usually एक जब webinar start होता है तो the person talks about themselves. Anyways, I would like to thank Priyanka for introducing me. But मैं उनको बोल रहा था कि मुझे मत करना इंट्रोड्यूस, क्योंकि मैं इस स्टेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब आप देखो ये प्रॉब्लम्स है,
ट्रेनिंग किड्स टू इम्प्रूव स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, चिल्ड्रन को अपना लर्निंग रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और एक कार्टून शो के लिए कुछ फिगर्स बनाने हैं। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने एक्चुअल में किए हैं। अब मेरा बैकग्राउंड है गेम डिज़ाइन, मैंने DIY टॉयज में काम किया है, मैंने बोर्ड गेम्स बनाए हैं, मैं डिज़ाइन, आई एम ऑल्सो डिज़ाइन एजुकेटर। तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे ये सब चीज़ें सुन के ऐसा नहीं लगता कि ये सब मेरा एरिया है करने का, बट देन अगेन व्हाट कनेक्ट्स इज कि मैं बच्चों के साथ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, प्ले में काम करता हूँ, लर्निंग में काम करता हूँ। तो आई हैव कोलैबोरेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव कोलैबोरेटेड विद वेंडर्स। मैं कुछ चीज़ बनाना चाहता है तो बाहर जाके पूछता हूँ कि क्या आप ये मुझे बना के दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग फॉलो करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपको क्या करना है और दूसरे लोगों को कैसे ढूंढना है जो आपके साथ ज्वाइन करके आपके साथ टीम बना के इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। So I'll show you the what was the end product of all these three problems that I had taken up as projects when I had done them. तो ये था जो डिजाइन थे, डिजाइन वेबिनार देके डिजाइन थिंकिंग ही बोल रहा हूँ मैं, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए फॉर किड्स। तो सो आई थॉट अगेन जो कीवर्ड्स मुझे मिले थे, इट शुड बी फन, जो घर पे रहे। जो आप घर पे रहते तो अकेले खेलने में तो कुछ मजा नहीं आता, आप और दोस्तों के साथ कर सको, अपने भाई बहन के साथ कर सको, इवन पेरेंट्स के साथ कर सको। तो दिस इज अ फिजिकल टेबल टॉप गेम विच रिक्वायर्स प्लानिंग। और जब हम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है कि दिमाग लगा ना, जैसे चेस में आप दिमाग, जैसे चेस चेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, पीपल से आपकी स्ट्रैटेजी इंप्रूव होती है, बट इसमें आपका स्किल भी रिक्वायर्ड है, आप हाथ को कैसे यूज करते हो। तो आई कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। सो बेसिकली ये जो रॉड्स हैं, इनको आपको बाहर निकालना है, तो जो पहले अपने रॉड्स बाहर निकाल लेता है वो जीत जाता है। और मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी। तो ये एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पीस है, ये कंपोनेंट है जो जिस रॉड पे होता है वो रॉड आपको बाहर निकालना होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो कंपोनेंट नीचे वाले रॉड में गिर जाता है, और आप फिर मैन्यूवर करके उसको किसी और रॉड में गिरा सकते हो। सो बेसिकली आई थॉट ऑफ मेकिंग अ गेम दैट कैन हेल्प किड्स improve their strategic thinking. Oh, I think there is something wrong with this image. दिख रहा है क्या ये आप लोगों को? नो, थोड़ा ब्लर दिख रहा है ऐसे। हाँ, I don't know, कुछ इशू हो गया शायद। I think I'll zoom in on this one. So ये वो प्रोजेक्ट था जहाँ पे स्कूल लर्निंग को रियल लाइफ लर्निंग के साथ कनेक्ट करना था। तो इसमें मैंने बुक बनाया था, क्योंकि स्कूल में बुक्स होती हैं, बट ये स्कूल के बुक्स की तरह नहीं थी। इसके अंदर आपके पास कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स में आपको क्या करना है, तो आप जो क्लास में पढ़ते हो, जैसे अगर आपने पढ़ा आज जैसे कोई मटेरियल के बारे में पढ़ा, वुड के बारे में पढ़ा, तो आप घर आओ, आप देखो कि आसपास कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वुडन प्रोडक्ट्स है आपके घर में, या फिर वुड कहाँ कहाँ यूज होता है, और वो सब चीजें लेके आप क्वेश्चंस बनाओ। वो क्वेश्चन बना के आपके इधर कार्ड्स बन जाते हैं, और फिर ये कार्ड्स के पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये कार्ड्स आपके ऑटोमेटिकली प्लेइंग कार्ड्स में कन्वर्ट हो। तो ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था, कुछ बच्चों के साथ टेस्ट भी किया था, एंड मतलब देवर एंजॉयिंग इट, मतलब देवर प्लेइंग इट लाइक अ गेम। एंड वो बोल भी रहे थे कि वहाँ पे दिख रहा था कि कैसे वो याद कर रहे हैं, हाँ स्कूल में, हाँ मैंने क्लास में ये पढ़ा था, और इसने अभी एक क्वेश्चन पूछा है जो मैंने सामने देखा है कि आजकल हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे वायरस क्या होता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा बनाए, कोरोना किस टाइप का वायरस है जो स्कूल में पढ़ा था। तो ऐसे, सो दिस वाज अ प्रोडक्ट दैट आई मेड, आई हैड शेयर्ड दिस विद द टीचर्स आल्सो, और टीचर ने भी बोला था कि हाँ ये क्लासरूम में भी इंटीग्रेट करना आसान है, और इट्स समथिंग दैट द किड्स कैन टेक बैक टू देयर होम्स। तो बाकी के फोटोग्राफ्स भी आई थिंक दे आर जस्ट दीस बुक्स का फोटो है। सो या, दिस वाज वन प्रोडक्ट। और जो लास्ट वाला था, दिस वाज अ कार्टून शो जो निकलोडियन पे आने वाला था। उनका थीम अंडर वाटर था, और उनके कैरेक्टर्स थे, एक स्टारफिश था, एक जेली था, एक सी हॉर्स जैसा था, और एक क्यूकम्बर जैसा था। अब मेरे दिमाग में वही था कि यार सारे कैरेक्टर्स तो हमेशा 3D प्लास्टिक के ऐसे होते हैं ना, एक्शन फिगर्स मिलते हैं आपको खरीदने के लिए। आप जब भी कॉमिक कॉन में जाओ या फिर बाहर कुछ किसी भी शॉप में जाओ, DC मार्वल फिगर्स, ये सब यही पॉपुलर है, बार्बी डॉल्स, सब एक्शन फिगर्स। तो व्हाट आई मेड हियर वाज कि जैसे आप देख सकते हो एक इमेज में उसका चेहरा बाहर आ गया, तो इसी तरीके से ये चेहरा किसी भी कैरेक्टर में फिट कर सकते हो। ये कैरेक्टर कपड़े के बने हैं, और ये कपड़े का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट, और वो जो एज ग्रुप है जिस बच्चों के लिए वो शो था वो उनके साथ बहुत मैच करता है।
और ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बैग पे भी टांग सकते हो। इसका एक कंपोनेंट अभी इधर है नहीं, फोटो में नहीं है, बट समथिंग दैट कैन बी अटैच, जिनके इनके आंख और मुंह बन जाते हैं, उस पर आप स्केचिंग कर सकते हो। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि हर एक्शन फिगर वैसा होना चाहिए जैसे आप देखते हो अपने आसपास। So yeah, so in short, this is the screen I was saying that if you want, you can take a screenshot of this and keep it with you and try this out. Once again, I would like to say कि it's very tough to talk about design thinking in just 1 hour. It is something that needs to be practiced. और ये जो beginners kit है, ये this is not the final solution. This is just to help you practice or try to understand design thinking. ये चीजें आपको, और इसमें बहुत सारे मेथड्स है, जैसे मैंने बोला बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं और भी बहुत डेप्थ है इसमें, जो आप टाइम के साथ डिजाइन कॉलेजेस में, इफ यू जॉइन अ डिजाइन कॉलेज और प्रॉब्ली यू जॉइन अ डिजाइन कोर्स या डिजाइन थिंकिंग का कोई वर्कशॉप करते हो, तो आपको ये और इम्प्रूव। सो या, सो दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। आई विल थैंक यू ऑल फॉर, आई होप एवरीवन इज स्टिल देयर और कोई सो नहीं गया हो क्योंकि ये काफी, आई थिंक 1 घंटे के लिए चला गया। आई सॉरी आई कुड नॉट कीप इट विद इन टाइम। Thank you so much, sir. Like, thanks for throwing some light because I think like few students like जो अपने students हैं, like obviously they are aware कि बहुत बार हम बोलते हैं कि collaborative and territorialization नहीं होना चाहिए, right? So because I think like the school education has educated you to think about the territories and barricades. बिकॉज ग्रुप में बात रहते हैं ना, जैसे लाइक अभी हम बोलते हैं कि देश बटाए तो हम लोग ग्रुप में बांटने के लिए बहुत ज्यादा मतलब लाइक विल इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट। सो बट लाइक इन व्हेन एज सून एज वी समवेयर द क्रिएटिव पीपल दे एंटर इनटू स्ट्रीम्स लाइक डिजाइन, तो सडनली क्या हो जाता है कि सडनली उनको बोला जाता है कि यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद पीपल, बी सोशलाइजिंग विद पीपल, राइट? I think it's very difficult कि ऐसे कैसे कर दे, है ना? तो like socializing तो हम Facebook में करते हैं, physical कैसे करें? So I think they understood, like I think when multiple people throw some light like as you did, because I think like this is what we have gone through the journey of connecting things with different what do you call different strategies के साथ, different concept के साथ, and that's why we always prefer to talk about the design more. जितना बात करते हैं, जितना सीखते हैं, so जितना हम देखते हैं उतना हम समझ पाते हैं. So thank you so much. So giving your valuable time, and hopefully we would like to have you on campus for other stuffs as well. Yeah, definitely, definitely. मतलब मैं तो वही कहता हूँ कि ये I was actually telling Abhishek also कि इस चीज को वेबिनार में डालना इट्स क्वाइट टफ, बिकॉज हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं, हम करते हैं, करके सीखते हैं. मतलब डिजाइन इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड डूइंग. बट देन अगेन आई थॉट दैट प्रॉब्ली आई कुड जस्ट टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ कनेक्शन. बस आप ये समझ जाओ कि चीजों को कनेक्ट करने से देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू मीनिंग दैट यू कैन क्रिएट. And another thing is like good part is like for the foundation they have just ended up with the design process part one. So I think it's that's why I was scheduling this holding this webinar for longer time, because ऐसा था कि I was waiting design process खत्म हो जाए then they can connect more. उनको जो गैप है, जो फिलर चाहिए था उनको, आई थिंक दे हैव रिसीव्ड द आंसर, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना, लाइक हाउ टू कॉन्सेप्चुअलाइज इट एंड उसको कैसे सोचा जाता है वगैरह, ऐसे कैसे हो जाता है. तो लाइक so because there was one few things I have observed. A product designer always think like I want why should I think about other things, my only territory is based on the product. So जब उनको लगता था यार ये हमेशा ये मना ही करते रहते हैं सर. The answer, thank you so much. At least pleasure is all mine. Thank you so much for inviting me. No, it's our pleasure, sir. Thank you so much. So we would like to have you for more other occasions as well. Definitely. The lockdown you were आपका miss हो गया. So looking forward. Thank you so much, sir. So like I conclude here. ठीक है? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Do you want to Thank do you, any sir. Q&A? मतलब I could spare another 10 minutes अगर किसी को करना है तो. कुछ questions है, कुछ मुझे doubts है तो, लगा अगर है तो. मतलब बहुत सारे मतलब like I was saying कि काफी complicated है, बहुत सारी चीजें हैं. There is only a small portion that I could communicate in this 1 hour thing, but still if you have any questions, I would love to answer them. Sir, जी. I want to know what are the scope in designing and future, and how we could explore, or it is a good career option for designing in a better future. तो design में like I was telling you, a designer can work in any area, but that depends upon आप जब पढ़ते हो आपको किस एरिया में इंटरेस्ट आता है and you develop your skills in that area. Okay. And जो उसका future scope है, of course there are very popular departments है, product design है, apparel design है, game design है, policy level पे लोग काम कर रहे हैं, schools में काम कर रहे हैं. For example, आप बाइजूस का ad आप देखते हो ना बहुत Yes. आजकल. बाइजूस इज वेरी पॉपुलर, यू नो. उस कंपनी के उस कंपनी का रिसर्च हेड और उस कंपनी का गेम डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड दोनों मेरे बैचमेट्स और मेरे जूनियर. तो एनआईडी में कोई एजुकेशन डिजाइन करके कोई डिसिप्लिन नहीं है, और वहां पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो एजुकेशन डिजाइन करके कोई चीज पढ़ के नहीं आए. सो बट वो व्हेन दे वर लर्निंग डिजाइन, कोई प्रोडक्ट डिजाइनर था, कोई ग्राफिक डिजाइनर था, उनका एक इंटरेस्ट आ गया एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई में, उनको कैसे पढ़ाते हैं, और उन्होंने वो एरिया में अपना एरिया वो फाइंड आउट किया. तो एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू फाइंड इट. यू कैन फाइंड अ न्यू स्कोप और यू कैन एक्चुअली वर्क इन एग्जिस्टिंग एरियाज. और एंड ये वाला थॉट तो दिमाग से निकाल देना कि डिजाइन पढ़ लिया तो बहुत तगड़ा सैलरी मिलेगा. आप जितना मेहनत करोगे, आप जितना अच्छा प्रोजेक्ट्स करोगे, आप जितना इनिशियली मतलब जितना हार्डवर्क करोगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे है. Okay. And sir, if when we are thinking of design, we are thinking of printing something in clothes or a plain material, for that design we will put in that material. Is it like that? It will come. ये बहुत ही आई वुड से इट्स लाइक 0.1% ऑफ डिजाइन. जो आपने तो बोला ना, इट्स 0.1%. देयर इज सो मच मोर. डिजाइन इज मतलब यू विल फॉल इन लव विद डिजाइन इफ यू स्टडी इट प्रॉपर्ली. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई यू शुड गो टू अ कॉलेज. आप जो चीजें आसपास, आप जहाँ बैठे हो, आप आसपास जो भी चीज देख रहे हो ना, सब में डिजाइन का एक रोल आ सकता है. किसी ने डाला हो नहीं डाला हो वो अलग बात है, but everything that you see around you, wherever you're sitting, everything, there is a possibility of a designer working in it. Sir, Yeah. sir, I have a question. There was a point in your PPT where know the user in Yeah. phase 2. Yeah. Sir, if we come up with some limitations, because of that we aren't able to complete that phase. Know the user. I can't like I'm making a product for some particular age group of people or particular specific people, but I'm not able to communicate with them or not able to meet with them. Will it can I be able to complete my design without that process? So, मतलब मैं ये, I won't say that you cannot do it if you don't interact with the user at all. There are a lot of people, if someone cannot interact, that doesn't mean they can't design. But वहाँ पे क्या होता है, there, whatever you make, you have to make sure that you test it. So once you test it, you will have to take it to the user. तो उधर तो आपको पता ही चल जाएगा कि suppose आपने बिना बात करके, suppose you are buying like you're making a product for an elderly person, ठीक है, you have not talked with them, आपने अपने इंट्यूशन को यूज किया, आपके एक्सपीरियंस को यूज किया, आपने जितना देखा है मीडिया पे, रियलिटी में, रिलेटिव्स को, आपने कुछ बनाया, बट आप वहां पे अपना प्रोजेक्ट नहीं खत्म कर सकते. अल्टीमेटली जब आप टेस्ट करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपके जवाब मिल जाएंगे कि कहाँ पे कुछ लैकिंग था या कहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या ये भी हो सकता है कि व्हाट यू मेक माइट वर्क, बट वो क्लैरिफिकेशन और वो कंफर्मेशन आपको टेस्टिंग में ही पता चलेगा. वन एडवांटेज ऑफ इंटरैक्टिंग विद द यूजर फर्स्ट इज कि आप सपोज 3 महीना लगाते हो
प्रोडक्ट बनाते हो, पैसा खर्च करते हो, टेस्टिंग के लिए जाते हो और पता चलता है कि ये गलत है, तो आपका उतना टाइम, उतना मनी, उतना बजट वो खराब जाता है. सो नोइंग द यूजर इन द बिगिनिंग हेल्प्स यू इन दैट. Thanks a lot, sir. Anybody else? सब म्यूट पे. Okay, sir. So ठीक है, ठीक है. thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. And we are waiting in PP Savani for you, sir. Yeah, definitely. After the lockdown. I hope to meet you guys soon. Yeah.